بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے وابستہ میرے تمام محترم صحافی بھائیوں، السلام علیکم۔ میں محمد ندیم انور، چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، جناب محمد شاہد صاحب اور جناب محمد عثمان صاحب اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز گجرانوالہ اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری آواز پر تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم پچھلے 2.5 ماہ سے مکمل طور پر بند پاکستان کے ایک ایسے اہم شعبہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں جس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات لا سکیں کہ تقریباً کم و بیش اس شعبہ تعلیم کے ساتھ 20 لاکھ خاندان اس وقت کس قدر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کورونا جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے وطن پاک کو محفوظ فرمائے، آمین۔ جناب عالی، یہ کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے گورنمنٹ نے اسکولوں کو پہلے 14 مارچ سے 31 مئی تک تعطیلات کے زمرے میں لا کر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر 4 مئی کو ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے 15 جولائی تک مزید چھٹیوں کو بڑھا دیا۔ ہم اس غیر دانشمندانہ اور امتحانات کی غیر منطقی منسوخی کے اس حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اسے تعلیم دشمن قرار دیتے ہوئے اس کی زور مذمت کرتے ہیں۔ 15 جولائی تک تعلیمی اداروں کی بندش سے تقریباً 50% پرائیویٹ اسکولز کے بند ہونے کا اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا بحیثیت ٹیچر جو کام کر رہے ہیں ان کا بے روزگار ہونے کا شدید خدشہ لاحق ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر SOPs جاری کرے اور 1 جون سے پرائیویٹ اسکولز کو بلکہ گورنمنٹ اسکولز کو تعلیم کے سلسلے کو کھولنے کا احکامات جاری کرے۔ نمبر 2، یہ کہ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب پچھلے کچھ عرصہ سے پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں جو غیر مہذب ناشائستہ انداز گفتگو اور اپنے منصبی ذمہ داریوں اور حلف کی ترجیحیں اڑاتے ہوئے آئین پاکستان کے آرٹیکل 3، 4، 5، 18، 25، 37 اور 38 کے تحت پرائیویٹ اسکولز کو حاصل بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف والدین کو اسکولوں کے خلاف ان کے فیسوں کے واجبات جمع کرنے سے روکتے ہوئے اور ان کو ایک نفرت انگیز اشتعال دلانے میں جو مصروف عمل ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر موصوف نے ان مسلسل غیر آئینی و غیر قانونی اعلانات کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کا بری طرح سے استحصال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف اسکولوں میں ماہ مارچ اور ماہ اپریل میں جو فیس وصولی کا تناسب رہا وہ محض 10 سے 15% رہا اور ماہ مئی میں بھی کسی ادارے میں بھی 5% سے زیادہ فیس جمع ہونے کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ 90% اسکولوں کی جو بلڈنگز ہیں وہ کرائے پر ہیں اور وزیر تعلیم کے مسلسل فیس نہ جمع کرنے کے بیان کی وجہ سے ہم نہ فیسیں اکٹھی کر سکے، جس کی وجہ سے ہم ٹیچرز کو اپنے ملازمین کو نہ تنخواہیں دے سکتے ہیں نہ بلڈنگوں کی کرایہ کی ادائیگی ممکن ہے۔ ہم اس فورم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بدار صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طلباء طالبات کے والدین کو پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف اکسانے، آئین پاکستان اور رول آف لا کی درجیاں اڑانے اور پرائیویٹ اسکولوں کا معاشی قتل کرنے کی بنا پر
वज़ीर तालीम डॉक्टर बिलावल अब्बास को फिलफौर इस ओहदा से बरतरफ किया जाए। आपके इल्म में ये बात भी लाना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने 2016 में एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के मुताबिक सूबा पंजाब में 98% ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनकी फ़ीस 5,000 और 5,000 से कम है। महज 2% स्कूल ऐसे हैं पंजाब में जिनकी फ़ीस 5,000 से ज़ायद है। और गवर्नमेंट के ही ऐसे करवाए गए सर्वे के मुताबिक 4,000 से कम फ़ीस वाले स्कूलों का मुनाफा जो रेशो है वो महज 5 से 6% है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, उसके मुताबिक भी बीकन हाउस जैसे बड़े सेटअप का भी मुनाफा पूरे पाकिस्तान में 10% से ज़्यादा नहीं है। और एक बात काबिल गौर कि गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक ज़ेर तालीम एक बच्चे पर गवर्नमेंट को औसतन 8,000 रुपया ख़र्चा आता है। और याद रहे कि बिल्डिंग के किराए गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ते। हर साल पंजाब भर के बोर्ड, बल्कि पाकिस्तान भर के प्राइवेट तलीमी बोर्ड्स के नताइज, जिनमें से 80% पोजीशंस प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं, इस बात की अक्कासी करती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अक्सरियती 98% में हैं, अपने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन क्वालिटी रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। इस सूरत हाल में मुबैना तौर पर मुतसाबाना रद्दअमल में वज़ीर तालीम पंजाब की कोशिशों से आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 3, 4, 5, 18, 25, 37 और 38 की रूह की खिलाफ वर्जी 22 अप्रैल 2020 को गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किए गए एक आर्डिनेंस की शक्ल में, जो कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस में 20% कमी करने के सिलसिले में था, आर्डिनेंस जारी किया, जो कि सरीहन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 2 फैसलों की सरीहन तौहीन अदालत है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस गैर कानूनी आर्डिनेंस को फिलफौर 12D इसको वापस ले। अगर 1 जून 2020 से स्कूल ना खोला गया तो आप ये ज़हन में रखें कि तकरीबन 2 करोड़ तलबा का जो मैट्रिक क्लास के हैं उनका तलीमी नुकसान होने का ख़दशा है, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है। गवर्नमेंट के अपने अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 2 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग्स या बुनियादी सहूलतें देने से कासिर है। ऐसे हालात में प्राइवेट स्कूल्स पर ऐसी बंदिश लगाना एक अलमियत से कम ना हो। गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल ही नहीं कि गवर्नमेंट उन 2 करोड़ बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं उनको तलीम से के ज़ेवर से आरास्ता कर सके। हम मुतालबा करते हैं कि स्कूलों के ख़िलाफ़ एक अहम मनसब पर बैठा हुआ शख्स एक ऐसी कंपेन चलाए जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी हो, इसको हम भरपूर दोबारा मजम्मत करते हैं। हम एक तजवीज़ पेश करते हैं कि हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को 2 शिफ्टों में ले आए। चूँकि गर्मियों का मौसम है, पहली शिफ्ट 6:30 से 10:30 तक कर ले, दूसरी शिफ्ट 11:15 से 2:15 बजे तक कर ले। तलीमी नुकसान का कम अज़ कम तौर पर हम इसको कंट्रोल करने के काबिल रहते हैं। पिछले 2-3 माह से प्राइवेट स्कूल्स का बंद होना, तलीमी सिलसिलों का बंद होना, वज़ीर तालीम के नेगेटिव रिमार्क्स, प्राइवेट स्कूल्स के बार बार क्लिप का, ट्वीट का चलना, इसकी वजह से हम अपने बुनियादी अखराजात अदा करने से भी कासिर हैं। इस मौके पर मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि स्कूलों पर आयद तमाम सूबाई और वफाकी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज प्राइवेट बेनिफिट टैक्स और दीगर यूटिलिटी बिल्स जो हमें कमर्शियल अदा करने पड़ते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी गई। कई स्कूलों के बिल बिजली के मीटर उतारे जा चुके हैं इसी मुगालते में कि हुकूमत ने रिलीफ दी है। स्कूलों को बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पानी के बिलों में
جو ٹیکس لگتے ہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی. میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے توسط سے کہ پرائیویٹ سکولز کو ان تمام جو ٹیکسز نافذ کیے گئے ہیں ان پر چھوٹ دی جائے، بلکہ چھوٹ دیتے ہوئے ان کو فی الحال جو پرانے مارچ سے لے کر مئی جون تک ان کو ختم کیا جائے، بلکہ اگلے آنے والے 6 ماہ تک ان کو جرمانے سے معاف کیا جائے. ایک اہم بات آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ پاکستان میں پاک فوج کے بعد محکمہ تعلیم، شعبہ تعلیم سب سے بڑا ادارہ ہے، اور پنجاب میں اس کی ایک بہت بڑا والیوم ہے جو محض وزیر تعلیم رات کو ایک ٹویٹ کے ذریعے چلا رہے ہیں. رات کے 10 بجے فیصلہ آتا ہے صبح چھٹیاں ہوں گی، رات کے 10 بجے فیصلہ آتا ہے چھٹیاں بڑھا دی گئی. اس میں ان کے یہ غیر دانشمندانہ قدم کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر تعلیم پرائیویٹ سکولز کی نمائندہ جماعتوں کو لے کر ساتھ چلیں، آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کے نمائندگان کو ساتھ لے کر چلے، بطور اسٹیک ہولڈر اپنے فیصلوں میں تعلیم کے شعبہ میں بہتری کے لیے شامل کریں. اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو الائنس آف پرائیویٹ سکولز گوجرانوالہ مرکزی لیول پر موجود آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے مرکزی صدر مرزا کاشف علی کے ساتھ ان کی کال پر 1 جون سے اسکول انٹرنیشنل SOPs کے مطابق کھولنے پر مجبور ہوں گے، اور ہم اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی بھی قانونی راست اقدام لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے تمام ذمہ داران، تمام تنظیموں کے صدور کی جانب سے آپ تمام محترم بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے مسائل کو سنا اور اپنے میڈیا کے توسط سے ہماری آواز متعلقہ اداروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. ایک بات میں اس میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے اس الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن گوجرانوالہ میں کم و بیش گوجرانوالہ کی 10 سے زائد تنظیمیں شامل ہیں جن کے صدور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم متفقہ طور پر ایک اپنے اتحاد کے پلیٹ فارم سے، اس الائنس کے پلیٹ فارم سے آپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی توسط سے ہمارے یہ گزارشات حکومت وقت تک پہنچائی جائیں. شکریہ. آپ کو سوال کرنا چاہیں وہ بھی. اچھا سر، سوال یہ آپ نے خود ہی بتایا کہ بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس ادارے سے ظاہر ہزاروں ٹیچر منصف ہوں گے جن کا روزگار ہوگا، اور اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی پرائیویٹ سیکٹر میں، 3-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار زیادہ سے زیادہ ٹیچر کی تنخواہ ہے. آج کل کوئی لیو بھی نہیں آپ کو ملا، تو کیسے ان کے گزارا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے آپ کی سیلریاں پے کر رہے ہیں؟ کیا حالات ہیں؟ دیکھیں جی، جون کی اور مئی کی اکثریتی اداروں نے اپنی جیب سے، اپنے ذاتی وسائل سے ٹیچرز کو تنخواہیں میکسیمم حد تک ادا کی، مارچ سے لے کر مئی تک. اب جون میں کیا ہوتا ہے، جیسے چھٹیاں بڑھا رہے ہیں تو ہر ادارے کی ایک حد ہوتی ہے. تو ابھی تک تو ہم کچھ نہ کچھ جیسے تیسے اپنے اسٹاف کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں، ہم ان کو فارغ نہیں کر سکتے. ہم نے اسکول بند نہیں کیا، ہم نے اسکول چلانے ہیں، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں انہوں نے چلنا ہمارے ساتھ، تو بامشکل گزارا کریں. اچھا، تو کیا تجویز کیا ہے کہ کس طرح سے اسکول کو چلایا جائے، کس طرح سے سماجی فاصلہ کو برقرار رکھا جائے گا؟ کیا ہدایات آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے چیز بنائے جانے چاہیے جس پر اسکول چل سکتے ہیں، کورونا نہیں پھیلے گا؟ گزشتہ روز پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرپوزل انہوں نے اپنے DRS کو بھیجی ہیں. اس میں جو ہم نے مرزا کاشف صاحب نے مرکزی لیول پر حکومت کو تجاویز دیں کہ SOPs کے تحت شفٹوں میں دنوں کے حساب سے آپ جیسے بھی ممکن ہے اس سلسلے کو چلائیں. اس کو روکنا بند کرنا اس کا مسئلے کا حل ہے. اچھا، اس میں میں ایک اضافہ کرتا چلوں. جی، میں ایک اضافہ کرتا چلوں. بڑا آسان ہے ان SOPs کے تحت اسکولوں کو چلانا اور تعلیم کے سلسلے کو جاری کرنا. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ ہفتے میں 6 دن ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں. آپ آدھی کلاس کو ایک دن بلا لیں، آدھی کلاس کو دوسرے دن بلا لیں. فرض کریں کلاس میں 25 بچے ہیں، اگر آپ ان میں سے آدھے بچوں کو بلائیں گے تو 12-13 بچے ایک دن آئیں گے، 12-13 دن دوسرے بچے آ جائیں گے. ایک بات. اور عام طور پہ جو کلاس کا سائز ہے اس میں بڑی آسانی کے ساتھ 6 فٹ کی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسرا، اگر ہم اس کو 2 شفٹوں میں، جیسے ندیم صاحب نے فرمایا 2 شفٹوں میں کر لیں تو پھر یہ تعداد اور بھی کم ہو سکتی ہے. اس دوران کریں گے کیا ہم لوگ
ना तो असम्बली होगी, ना ब्रेक होगी, ना ब्रेक टाइम की दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी कि बच्चे आपस में मिलें। घर से सीधे क्लासरूम में आ रहे हैं, पढ़ने के बाद सीधे घर जा रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट के दरमियान में आधे से लेके 1 घंटे का गैप होगा, तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी। ये तो सर हो गया बड़े स्कूल हैं आपके, वहाँ तो आपके पास गुंजाइश है, लेकिन आपको भी क्या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखें एक क्लास में कितने जी बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन छोटे जो स्कूल है वहाँ पर एक क्लास में देखें 60-70 बच्चे लिए, तो वो कैसे सोचे? नहीं, ऐसा छोटे नहीं स्कूलों में है, ऐसा तादाद नहीं। छोटी होती है, ये ऐसा हकीकत नहीं। बात है। नहीं ऐसा है ना कि जो नवाही इलाका जाता है वहाँ तो जी मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ। एक तरफ आप फरमा रहे हैं छोटे स्कूल, दूसरी तरफ कह रहे हैं 60-60, 70-70। इस साइज़ के क्लासरूम ही नहीं है जहाँ 60-70 बच्चे बिठाए जा सकें। थोड़ी होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। मैं यही बताने लगा, आम जनरल जो बेडरूम साइज़ या क्लासरूम साइज़, या क्योंकि जैसे नदीम साहब ने फरमाया 98% से ज़ायद बिल्डिंग्स किराए की हैं, लामहल्ला वो रहायशी बिल्डिंग्स थी पहले, उनमें कमरों का साइज़ बड़ा मुनासिब है। 25-30 से ज़ायद हम नहीं बिठाते, ये मिथ है या किसी ने आपको गलत इन्फॉर्म किया है कि छोटे छोटे कमरों में 60-70 बच्चे बिठा लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो बेहतरीन लेवल के स्कूल है वो 25 बच्चों की क्लास लेके चलते हैं, जो ज़रा जिनका फ़ीस लेवल कम है वो 30 की लेके चलते हैं। मैक्सिमम 30 की क्लास के कितने बच्चे हुए 15, और गर्मी का मौसम है, अटेंडेंस की रेशो जो है उस वो भी असरअंदाज होगी, तो एक दिन में 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में। मतलब जिम्मेदारी आपकी है, हुकूमत इजाज़त देते हैं। अच्छा सारे जी, प्लीज़। तो पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है कोरोना का। जी जी। तो गुजरांवाला में तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये मुतालबा कर रही है कि स्कूलों को यकम जून से खोलना चाहिए, और उसके साथ जब से ये स्कूल बंद है हर महीने रेगुलर वालदैन जो है उनको फीस के हवाले से मैसेज जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्कूल एसोसिएशन को क्राइसिस का सामना है, और दूसरी तरफ जो वालदैन वो भी कोरोना की वजह से मुतासरीन में शामिल है इस वक्त, तो किस तरह इनका हल निकाल सकता है? दूसरी तरफ बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 20% फीसों में कमी बिल्कुल नहीं की गई। हमारे गिरदर वहाँ पे ऐसे गली मोहल्लों में स्कूल हैं, बड़े स्कूल तो एक साइड पे कर देना, 8-10 हज़ार वाली तो हमारी पहुँच ही नहीं है, जो रेगुलर हमारी पहुँच है उन लोगों ने स्कूलों की फीसों में कमी नहीं की। इस हवाले से ज़रा असल में ना इसमें एक कन्फ्यूजन है जो क्लियर होनी चाहिए। 20% कमी से मुराद उस हर अदारे की जो अनाउंस्ड फ़ीस होती है। फ़र्ज़ कर एक स्कूल है, उसकी फ़ीस है 1500 रुपया, अब एक बच्चे के किसी तल्लक की बिना पर उन्होंने फ़ीस ली की हुई है 1200 रुपया पहले से ही, तो फ़ीस में कमी का जो कानून है वो 1500 पे लागू होता है। जिस बच्चे की 1500 है उसको 20% कम कर दी गई है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे है? वालिदैन ये चाहते हैं, अगर कोई वालिदैन पहले से ही 1500 वाले स्कूल में 1000 फीस दे रहे हैं, वो कहते हैं आप हमें भी 20% डिस्काउंट मिले। अब स्कूल वाला 1000 पे डिस्काउंट तो नहीं दे सका, पहले से वो 30% डिस्काउंट दे रहा है। मैं समझता हूँ वालिदैन को खुद भी ये बात समझनी चाहिए, और एक स्टडी है, सर्वे है हमारा, ये जो 98% स्कूल जिनका जिक्र नदीम साहब ने किया, जो 4000-5000 या से कम फीसों वाले अदारे हैं, उसमें तकरीबन 25% से लेके 30% ओवरऑल औसत की बुनियाद पे पहले ही तमाम बच्चों को रायत है, और उस कमी के साथ अदारों को लेके चलना इंतहाई मुश्किल है। और उस मुश्किल में भी सिर्फ वो अदारे जिनका ब्रेक इवन क्रॉस हो चुका है, वो अदारे 4 से 5% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक बात, उस 4-5 प्रॉफिट में से 20% कहाँ से हम दे पाएंगे, मुमकिन नहीं है। कुछ बातें ना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक समझनी चाहिए, आंखें बंद करके ज़िद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कहा यह जाता है कि इन दिनों में यूटिलिटी बिल्स की बचत है, आपको बिजली का खर्च नहीं होता। मेरे भाई ये जो 1000-1500 या 2000 फीस वाले हैं, इनमें एसी नहीं लगे हुए, बिजली का कोई खातर का खर्च नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3% से लेके 5% बिजली का खर्च आता है। अगर फ़र्ज़ करें इन दिनों में जो हमारा स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, तो 2% बचत होगी 3%। अब 3% बचत का 20% के साथ मुआवजा करना, मैं समझता हूँ वैसे कम अकली है। नहीं, इसमें यह है कि गुजरांवाला के तमाम जो स्कूल हैं जी जी। उनकी फीसें जो एक शेड्यूल के मुताबिक तो है नहीं जी कभी बेसी तमाम स्कूलों जी, में ऐसा पाई ही है, जाती ऐसा ही है। अगर एक बंदे के बच्चे की फीस है 1500 रुपया, जी जी। उसने ताल्लुकात पे 1000 रुपया चाहिए हुई है, तो बाकी उधर स्कूल में जो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं वो 1000 वाले तो नहीं है। कमी बात ये सर गुजारिश सुन, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम लेके आए कि आपके स्कूल भी चलने चाहिए, और जो गरीब वालिदैन उनके बच्चे जो है ना वो तलीम हासिल करने चाहिए आसानी के साथ। अच्छा, इसमें हम ना ये नहीं कह रहे कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, खत्म करना चाहिए, नहीं, पहले स्कूल की बिल्डिंग चलेगी तो बच्चों को तलीम मिलेगी। ऐसे ही ये हम आपके साथ हैं इस बारे में। हम ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऐसा करना चाहिए फीसों के हवाले से कि वो जिसमें कोई गरीब वालिदैन को सहूलत मिल सके। जी ये क्या रिक्वेस्ट है। इस वक्त ना जो वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल जो बना हुआ है गुजरांवाला में एजुकेशन के हवाले से, उस ग्रुप का मैं एडमिन भी हूँ।
जितनी भी कंप्लेंट्स स्कूलों में फ़ीस के हवाले से मसूल होती हैं उनको हम उसको डील करते हैं, जवाब देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम पंजाब में सबसे कम फ़ीसों की शिकायत गुजरावाला में आई, और वो भी गलतफहमी की बिना पर। मतलब एक बंदा पहले ही ज़्यादा ले रहा है, उसका दोबारा हक नहीं बनता। और ये हुकूमती आर्डर भी हैं जो किसी भी स्कूल में पूरी फ़ीस लेने की रेशो 30 से 40% होती है, और मोहल्ले के स्कूलों में रेशो ज़्यादा होती है, वहाँ पर बुलाजी के ज़्यादा होती है। जो कम नहीं करते वो महज 2% हैं, जहाँ पर लोग पैसे 500,000 ज़्यादा लेके खड़े होते हैं कि कोई बिल में फ़र्क ना आए तो हम ये जमा करवा सकें। तो जी अदाफा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले बहनों भाइयों की सूरत में रिलीफ सिबलिंग डिस्काउंट जो होती है कानून के मुताबिक रिलीफ नहीं होता, लेकिन वो मशहूर हुआ, उसको अप्लाई किया जा रहा है और वो कर रहे हैं। जैसे ये भाई बता रहे थे कि कुछ को राहत दी गई है, कुछ को तो वो है जो एक ही बच्चा पढ़ता है, और जहाँ बहन भाई पढ़ते हैं यकीनन उन बहनों भाइयों के हवाले से भी उनको राहतें दी गई। अच्छा, जो आपने बात की नहीं है, एक मिनट, जो आपने बात की कि मैसेज करते हैं, हमारा हक है, उन्होंने या आपने कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट भेजें कि टाइम आ गया, आप लोग फ़ीस जमा करवाएं। अब पेरेंट्स ने 5 से 10% फ़ीसें जमा करवाई हैं, 5 से 10% से अदारे नहीं चलते, ना सैलरीज पे की जा सकती हैं, और मोस्टली इदारे मिड फरवरी से लेके अब तक इसलिए बंद है कि एनुअल एग्जाम के बाद प्रॉपर क्लासेस नहीं होती। अब 3 माह से अगर अदारे बंद हैं प्रैक्टिकली, तो फीसेस भी नहीं आएंगी, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और जो एक मिथ है कि प्राइवेट स्कूल बहुत कम सैलरीज देते हैं, ये मिथ क्लियर इसलिए होनी चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक डिसीजन किया था कि तमाम प्राइवेट अदारे अपने अपनी फ़ीस लेवल को जहन में रखते हुए, ये नहीं कि हर स्टाफ मेंबर को एक जैसी सैलरी मिले, अपने फ़ीस लेवल को जहन में रखते हुए अपने अदारे के 4 बच्चों की औसत फ़ीस के मुताबिक कम से कम सैलरी दें। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक अदारे की फ़ीस 2,000 है, अगर वो 8,000 सैलरी दे रहा है तो जस्टिफाइड है एज़ पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और मैं समझता हूँ इस मिथ को ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई अदारा 20,000 फीस ले रहा है तो वो 80,000 दे, हम तो कहते हैं दे। अब हमारे पास भी ऐसे अदारे हैं जिनमें फ़ीस लेवल मुख्तलिफ है, जैसा फ़ीस लेवल है वैसे हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। जी प्लीज़। और एक और इसमें बात आती है कि स्टाफ का जो डेफिनेशन है वो होता है कम से कम BA BEd, और हमारे स्कूलों में 50% स्टाफ अकॉर्डिंग टू लॉ अनट्रेंड होता है, जो BA BEd नहीं होता, तो उनका भी एक सर्वाइवल जो है वो मौजूद है। एक सवाल आपसे जी जी प्लीज़ सर, ये बताइएगा ये जो सारा टेन्योर है, क्लासेस बंद होने का, स्कूल बंद होने का, बच्चों की तालीम कितनी मुतासर हुई है, और जो हुकूमत ने टैली स्कूल बनाया है वो क्या वो बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है उस मयार के मुताबिक है? ये असल में इसमें बात यूँ है कि छोटे बच्चा, उसकी एजुकेशन का मतलब है क्रिएशन और लर्निंग, ना कि कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन। वहाँ से वो मूवी के तौर पे देख रहा है और थोड़ा बहुत सीख रहा है, और एक्चुअली वो एजुकेट नहीं हो रहा, एक बात। और दूसरा, एक स्टडी है उसके मुताबिक 11-12 साल तक की एज के बच्चे को ना कंप्यूटर पे बिठाना चाहिए, ना उसको मोबाइल देना चाहिए, रेडिएशन उस पर असरअंदाज होती है। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर वो काम कर रहा है, बड़े बच्चे तो समझ लेते हैं। अब क्या हम इन रेडिएशन से उन बच्चों को मार दें? बच्चों को लर्निंग होगी नहीं, क्रिएशन होगी नहीं, तो बच्चों की स्टडी कहाँ से आई? मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये सारे दोस्त जो समझदार बैठे हैं, आप भी माशाल्लाह समझदार लोग हैं, हम अगर अपने बच्चों को किसी भी स्कूल ऐसे कॉलेज के साथ अटैच करें जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहा है इस वक्त, तो उसमें भी 10% से ज़्यादा बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, 80% बच्चे वो लॉग इन ही नहीं हो रहे, इसलिए इसका कोई खातर का फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान है। जी भाई। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये नज़दीक ही अच्छी तालीम सस्ती देते हैं, तो फीसिस नहीं दे पा रहे लोग ना, और वज़ीर तलीम साहब के बयान भी ऐसे हैं कि अब लोगों ने जिन्होंने देनी थी उन्होंने भी नहीं दी, तो पूछा जो स्कूल मालिकान है जो स्कूल बंद कर रहे हैं, तो ये एक बड़े अलमिया की बात है। तो इस बारे में हुकूमत को कुछ आप क्या समझते हैं करना चाहिए कि लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि फ़ीस अदा करें, या सब्सिडी देनी चाहिए कम अज़ कम बिल्डिंग ये 20% बिल्डिंग वालों को भी काम करना चाहिए, या 20% टीचर्स की स्टाफ सैलरीज कम होनी चाहिए, मतलब जो मालिकान है उनका भी कोई ख्याल करना चाहिए। हर कोई इतना यानी कि वो सरमायादार नहीं है, ये मिडिल क्लास के जो स्कूल खुले हुए हैं इनके पास कोई सेविंग नहीं है। इस बारे में क्या कहें? अच्छा, इस तरह है कि ये जो नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि हम रूल ऑफ लॉ का ख्याल करेंगे, और मुझे नहीं समझ आती कि वज़ीर तालीम ने ना कानून था ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि वजारत के मनसब पर बैठा हुआ शख्स ऐसा नारा लगाए जिसकी कानून इजाज़त ही नहीं देता, आइन इजाज़त नहीं देता। किसी भी रियासत को चलाने के लिए आइनी ढांचा उसको फॉलो करना पड़ता है।
اور انہوں نے پیرنٹس کے لیے اعلان کر دیے کہ آپ فیسیں جمع نہ کروائیں. یہ سب سے بڑی زیادتی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک ایسا سامراجی رویہ ہے جو آئین پاکستان کے نعرے کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وزیر تعلیم پنجاب کو فی الفور برطرف کیا جائے. دوسری بات جو ان دوستوں نے کی اس کا بھی میں جواب دینا چاہوں گا. یقیناً اس وقت پیرنٹس بھی پریشان ہیں, ان کی ارننگ بھی رکی ہوئی ہے. پرائیویٹ سکول میں 5 سے 10% زیادہ فیسیں نہیں آئیں اور اب جو مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ اس میں تو نہ آنے کے چانسز ہے. میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر تعلیم سے, ہمارے سارے دوستوں کی کہ وہ جس طرح چینی پہ سبسڈی دیتے ہیں, جس طرح گندم پہ سبسڈی دیتے ہیں, تعلیم اس سے بھی زیادہ ہم بات ہے تو اس کے لیے سبسڈی کا اعلان کرے اور ایسا ریلیف پیکیج دیا جائے جو بلا سود ہو اور کم از کم 5 سال کے لیے ہو. ہم آسان قسطوں میں اس کو واپس کر دیں گے. تھینک یو.